سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل کے ڈاکٹرز نے چیک اپ کر کے صحت مند قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اٹک جیل میں لاک اپ خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ انہیں ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا جائے گا۔ لاک اپ کی سیکیورٹی جیل پولیس کے کمانڈوز کریں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں کے احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قصور کے نواحی علاقے کھڑیاں خاص میں جلسہ کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج قصور کے نواحی علاقے کھڑیاں خاص میں جلسہ کریں گے۔ وزیر اعظم ریلوے اسٹیشن گراؤنڈ میں قصور تا بھاون نگر موٹر وے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے جلسے کے لیے کئی ایکڑ پر مشتمل پنڈال تیار کر لیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تھانہ سٹی راولپنڈی کا دورہ کیا۔ گندگی، تعفن، صفائی کے ناقص انتظامات اور واش رومز کی ابتر صورتحال پر برہمی کا اظہار۔ ایس ایچ او کی سرزنش کی۔ وزیر اعلیٰ نے زیر التوا درخواستوں پر جلد ایف آئی آرز درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سائلین کو تھانے کے باہر بار بار چکر نہ لگوائے جائیں۔ پشاور کی تحصیل میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بلدیاتی انتخابات میں 6 امیدوار مد مقابل ہیں۔ جے یو آئی پیس سے تعلق رکھنے والے چیئرمین فرید اللہ کی وفات پر نشست خالی ہوئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف کے ناجائز بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان سمیت لندن اور دیگر ممالک میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ یوم استحصال کشمیر پر سینٹرل لندن میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین کی جانب سے کشمیری رہنماؤں کی رہائی اور آئینی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مانچسٹر اور بریڈ فورڈ میں، برسلز میں، ریاض اور جدہ میں بھی یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 110 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک کا اجلاس ہوا، جس میں کورنگی اور ملیف سمیت کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ایشین ہاکی چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کا جاپان میں میچ آج ہوگا۔ چین کا مقابلہ جنوبی کوریا سے اور میزبان بھارت کا سامنا ملائیشیا سے شیڈیول ہے۔ اس سے قبل بھارتی شہر چنائی میں کھیلے گئے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں پاکستان اور کوریا کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی اداکارہ نادرہ کو دنیا چھوڑے 28 برس بیت گئے۔ انہوں نے بہت ہی مختصر عرصے میں پاکستانی فلمی صنعت میں اپنے قدم جمائے۔ اداکارہ نادرہ کا فلمی سفر 8 سال تک جاری رہا۔ ان کی مشہور فلموں میں آخری جنگ، پتر شیراں دے، بادل، ناچے ناگن، میری آواز، کمانڈو ایکشن، زخمی عورت شامل ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ انہیں 6 اگست 1995 کو لبرٹی مارکیٹ لاہور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। शहर कायद कराची में भी आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। आजाद कश्मीर, खिता पोठोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बड़ी गिरफ्तारी, बड़ा फैसला, सख्त सिक्योरिटी। तफसील बुलेटिन का हिस्सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल के डॉक्टर्स ने चेकअप करके सेहतमंद करार दे दिया है। साबिक वजीर आजम को उनकी रहाइश का जमान पार्क से हिरासत में लेने के बाद पुलिस बसरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर आई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल किया गया। जेल के बाहर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात रही। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अटक जेल में लॉकअप खसूसी तौर पर तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म की हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। लॉकअप के करीब तैनात एहलकार गैर मुसल्लह होंगे। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल के डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद उन्हें सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म को उनकी रिहाइश का जमान पार्क से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद लेकर गई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल किया गया। जेल के बाहर फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात रही। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए अटक जेल में लॉकअप खसूसी तौर पर तैयार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा। लॉकअप की सिक्योरिटी जेल पुलिस के कमांडोज करेंगे। लॉकअप के करीब तैनात एहलकार गैर मुसल्लह होंगे। गिरफ्तारी के बाद रद्दअमल सामने आ गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमेरिका का रद्दअमल भी सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्दअमल भी सामने आ चुका है। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे, इसलिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। गैर मुल्की खबर इदारे को खसूसी इंटरव्यू देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का जवाब दिया और अदालतें मौजूद हैं जहां इल्जामात का जवाब देने का सबको हक होता है। उन्होंने कहा कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने हसास तंसीबात को निशाना बनाया। 9 मई हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई अपने दिफा के लिए अदालतों में पेश नहीं होते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने नैब की 150 पेशियां भुगती। कानून को धमकियां देने से आप मुकदमात से नहीं बच सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि आप आवाम को हर दफा अंधेरे में नहीं रख सकते। वफाकी वजीर ने कहा कि जमान पार्क में पीटीआई कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। क्या सरकारी अमलाक
अस्पतालों और स्कूल्स पर हमला करने वालों को रियायत दी जा सकती है। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड थे। चेयरमैन पीटीआई से माइशत की खराबी का पूछा जाए तो वो काबीना पर डाल देते हैं। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालफिन को कैद करवाया और अपने दौर में मीडिया कारकुनान पर भी तशद्दुद कराया। पहली बार देखा किसी सियासी जमात ने पेट्रोल बम्बों का इस्तेमाल किया हो। पुरअमन एहतजाज किसी भी सियासी जमात या कारकुन का जमहूरी हक है। आपको बताएं कि वाज़ेह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहाइफ बेचे, इसलिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे को खुसूसी इंटरव्यू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का जवाब दिया और अदालतें मौजूद हैं जहां इल्जामात का जवाब देने का सबको हक हासिल है। उन्होंने कहा कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनान ने हसास तनसीबात को निशाना बनाया। 9 मई हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन पीटीआई अपने दिफा के लिए अदालतों में पेश नहीं होते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने नैब की 150 से जायद पेशियां भुगती। कानून को धमकियां देने से आप मुकदमात से नहीं बच सकते और आप आवाम को हर दफा अंधेरे में नहीं रख सकते। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि दमान पार्क में पीटीआई कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए। क्या सरकारी अमलाक, अस्पतालों और स्कूल्स पर हमला करने वालों को रियायत दी जा सकती है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कसूर के नवाहे इलाके खुडियां खास में जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म रेलवे स्टेशन ग्राउंड में कसूर ता बहावल नगर मोटरवे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जलसागाह की तैयारियां अरूज पर हैं। कई एकड़ पर मुश्तमल पेंडाल तैयार कर लिया गया। जलसागाह में 150 फुट लंबा 30 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर दिया गया। मुशीर दिफा मलिक अहमद खान अपने हलका में आज भरपूर पावर शो करेंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा करने का हदफ दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कसूर के नवाही इलाके खुडियां खास में जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म रेलवे स्टेशन ग्राउंड में कसूर ता बहावल नगर मोटरवे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जलसागाह की तैयारियां अरूज पर हैं। इसी के साथ ही कई एकड़ पर मुश्तमिल पंडाल तैयार कर लिया गया है। जलसागाह में 150 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। मुशीर दिफा मलिक अहमद खान अपने हलके में आज भरपूर पावर शो करेंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा करने का टास्क सौंपा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना सिटी रावलपिंडी का दौरा किया। गंदगी, ताफून, सफाई के नाकिस इंतजामात और वॉशरूम्स की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया और SHO की सरसनिश की। वज़ीर आला ने SHO को वॉशरूम्स का विजिट करने, सफाई के इंतजामात और वॉशरूम्स की हालत को बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया है। दौरे के दौरान फ्रंट डेस्क कंप्लेंट सिस्टम भी इंतहाई सुस्त रफ्तार पाया गया, जिस पर वज़ीर आला ने नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी फ्रंट डेस्क के कंप्यूटर पर साइलिन की दरखास्तों पर प्रोग्रेस का जायजा लेने लगे तो सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब थाने के दौरे के बाद दोबारा फ्रंट डेस्क पर आए तो भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिस पर वज़ीर आला ने बेहतर स्पीड वाला इंटरनेट लगाने और ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर जल्द FIR दर्ज करने का भी हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि दरख्वास्तों के अंदराज से FIR तक साइलिन को थाने के बार बार चक्कर न लगवाए जाएं। साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने हवालात, इन्वेस्टिगेशन रूम, कंट्रोल रूम और थाने के दीगर हिस्सों का भी विजिट किया। इन्वेस्टिगेशन रूम में पुलिस एहलकार
लॉन्ग निक्कर पहने हुए थे और वहां पर चारपाइयां भी पड़ी थीं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने बरहमी का इजहार किया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहर्रिक हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने थाना सिटी रावलपिंडी का दौरा किया। गंदगी, ताफुन, सफाई के नाकिस इंतजामात और वॉशरूम्स की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया और SHO की सरजनिश भी की। वज़ीर आला ने SHO की वॉशरूम्स का भी विजिट किया है और आपको बता रहे हैं कि सफाई की नाकिस इंतजामात और वॉशरूम्स की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। दौरे के दौरान फ्रंट डेस्क कंप्लेंट सिस्टम भी इंतहाई सुस्त रफ्तार पाया गया। इस पर वज़ीर आला ने नाराजगी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क के कंप्यूटर पर साइलिन की दरख्वास्तों पर प्रोग्रेस का भी जायजा लेने लगे तो सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। निगरान वज़ीर आला थाने के दौरे के बाद दोबारा फ्रंट डेस्क पर आए तो भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इस पर वज़ीर आला ने बेहतर स्पीड वाला इंटरनेट लगाने और ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों पर जल्द FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने हिदायत की है कि दरख्वास्तों के इंदराज से FIR तक साइलिन को थाने के बार बार चक्कर न लगवाए जाएं। साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के नाजायज भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत लंदन और दीगर ममालिक में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेंट्रल लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से कश्मीरी रहनुमाओं की रहाई और आईनी हैसियत बहाल करने का मुतालबा भी किया गया। मानचेस्टर और बेडफोर्ड में भी कश्मीरी कम्युनिटी सरापा एहतजाज नजर आई। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में भी रैली निकाली गई जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से मुतालिक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारतखाने में तकरीब में मोदी हुकूमत के इक़दाम की मुसम्मत की गई। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास 110 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की मनसूबे की मंजूरी दी गई। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत पैकिंग का इजलास हुआ जिसमें मुतअद्दिद मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में कुरंगी और मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मनसूबों की भी मंजूरी दी गई। मनसूबों पर 18 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। 18 अरब 80 करोड़ रुपए से कुरंगी और मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली की जाएगी। वज़ारत खजाना के मुताबिक आलमी बैंक कराची मंसूबे के लिए 16 अरब 70 करोड़ रुपए कर्ज देगा। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी सतह पर ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। चारों सूबों के अलावा इस्लामाबाद को भी मंसूबे में शामिल किया गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात और देही तरक्की के मंसूबे भी हैकिंग इजलास में मंजूर किए गए। खबर शामिल करें पेशावर से, जहां ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,18,630 है। मर्द वोटर्स 1,20,738, खवातीन वोटर्स की तादाद 97,892 है। तहसील में मजमूई तौर पर 155 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन के लिए 496 प्रिजाइडिंग अफसरान की ड्यूटियां लगाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार तकवीज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI से रफीउल्लाह, PTI से इनामुल्लाह, जमात इस्लामी से इफ्तिखार अहमद, ANP से अजीज गफ्फार खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली अब्बास खान और नून लीग से फजल उल्लाह मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। JUI से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन तहसील मथुरा फरीद उल्लाह की वफात पर नशिस्त खाली हुई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज पेशावर की तहसील मथुरा में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तमाम तर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन का सिलसिला जारी है।
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में वोटर्स की मजमूई तौर पर तादाद 2,18,630 है। मर्द वोटर्स 1,20,738, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 97,892 है। तहसील मथुरा में मजमूई तौर पर 155 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन के लिए 496 प्रिजाइडिंग अफसरान की ड्यूटियां लगाई गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक JUI से रफीउल्लाह, PTI से इनामुल्लाह, जमात इस्लामी से इफ्तिखार अहमद, ANP से अजीज गफ्फार खान, पीपल्स पार्टी से अली अब्बास खान और नून लीग से फजल उल्लाह मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। JUI से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन तहसील मथुरा फरीद उल्लाह की वफात पर नशिस्त खाली हुई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहसील हवेलिया में चेयरमैन के इंतखाब के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से, जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। उबैद रहमान सुलेमानी, क्या तफसीलात हैं? सिक्योरिटी के मामला किस तरह डील किया गया है? जी बिल्कुल, एबटाबाद की तहसील हवेली में हम मौजूद हैं। आतिफ मुनसफ खान जिनको कत्ल किया गया, उसके बाद ये नशिस्त खाली हुई। आज ज़मीनी इंतखाबात यहाँ पर होने जा रहे हैं। इस वक्त कुल जो वोटर्स की तादाद है वो 1,65,800 है, जबकि पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो 134 पोलिंग स्टेशन हैं, 9 यूनियन काउंसिल हैं, 37 विलेज काउंसिल हैं जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। और आपको साथ से ये बताते चलें कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और ये जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं अक्सरियत में उनको हसास करार दिया गया था, जिसके बायस FC, रेंजर्स और दीगर पुलिस एहलकार जितने भी हैं वो यहाँ पर ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन में रेस्क्यू 1122 महकमा हेल्थ एबटाबाद और दीगर जो टीमें हैं वो इंतजामिया इसी तरह यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बात की जाए अगर टर्न आउट की, तो इस वक्त वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर जोशो खरोश के साथ वोट डालने के लिए आई, अपना वोट कास्ट कर रही है। और इसी तरह जो उम्मीदवार हैं उज़ैर शेर खान, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहाँ पर लाया गया और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। और इसी तरह ये जो पोलिंग का सिलसिला है ये शाम 5 बजे तक जारी रहे। बुलेटिन में मौसम की सूरत हाल पर बात करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जुड़वा शहरों में अली सुबह बादल बरसने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आई। बारिश के बायस नाशीबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। उधर शहर कायद कराची में भी आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों में जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर, खित्ता पोटोहा, शमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। खबरें मजीद भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फतेह जंग में जिले हतीम काबटवर न्यू सिटी मालिकान ने गरीब शहरियों को दुबई वीजा के नाम पर लाखों रुपए चूना लगा दिया है। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ना वीजे दिए ना ही रकम वापस की। मुतासरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फट पड़े। मुतासरीन का कहना था कि हमारे साथ जुल्म करने वाले मलिक सुहेल गुज्जर, मलिक बिलाल गुज्जर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी रकम वापस दिलवाई जाए। मुतासरा अफराद में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अली, मोहम्मद इमरान वद, अब्दुल्ला जान, आदिल अब्बास, मोहम्मद वकास और सुहेल कुरैशी शामिल है, जिनसे नौसरबाजी के जरिए 2,30,000 रुपए फीकस दुबई ले जाने के नाम पर बटोरे जाने लगे और उन्हें बताया गया कि 10-15 रोज के अंदर ही वीजे लग जाएंगे। लेकिन 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी ना तो वीजे लगे और ना ही रकम वापस की गई। जबकि नौसरबाज दफ्तर छोड़कर रफू चक्कर हो गए हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर रकम वापसी का मुतालबा किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि नौसरबाज मुतहर्रिक हो गए, उनके खिलाफ मुतासरीन फट पड़े हैं। फतेह जंग में
जिले हतीम कावा टूर न्यू सिटी मालिकान ने गरीब शहरियों को दुबई वीजा के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे हवेली लखा का, जहां पर हेड सुलेमान की दरिया सतलुज में सूजकी के मकाम पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में डूबने वाले बेड़े की तलाश ना हो सकी। कमिश्नर साहिवाल सैयद शोएब इकबाल दरिया सतलुज सूजकी के मकाम पर पहुंच गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी अब्दुल रहमान। हवेली लखा हेड सुलेमान की दरिया सतलुज पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर दिशान हनीफ हादसे में डूबने वाले बेड़े के मतलब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कितने इसमें अफराद सवार थे, अब तक कितनी बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और कितने लोग जिंदा बचे हैं, वो काइंडली तफसील दें। सर बेसिकली इस वक्त हमारे पास जो लोग बचे हैं वो 33 हैं। 8 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और 7 बंदे अभी लापता हैं। और ये 47 में से 2 लोगों का ताल्लुक उकाड़ा से है और 45 का ताल्लुक बहावल नगर से है। और कितनी रेस्क्यूज हैं इसमें सारी डिटेल? जो टीमें हमारी काम कर रही हैं 12 बोट्स काम कर रही हैं। एसएसजी के जवान कल मंगला से वो आ गए हैं। एक टेक्निकल टीम आई हुई है लाहौर से 1122 की, जिनके पास सोनार सिस्टम है, वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो DO 1122 भावल नगर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीमें भी यहाँ मौजूद हैं। आरिफ वाला से टीमें आई हुई हैं, साहिवाल से टीमें आई हुई हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कोई 120 to 150 के करीब लोग हैं जो फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 36 आवर्स इन दैट ऑपरेशन। थैंक यू सर। जो कश्ती डूबी है इसके निकालने के लिए क्या इंतजाम हैं अभी तक? इसके लिए जी हमारा ये 7वां ऑपरेशन जारी है। कल से सुबह से दूसरा ऑपरेशन हो चुका है। अब जाके कश्ती ट्रेस हुई है, SSG ने ट्रेस किया है। कश्ती का जो ज़मीन में गया हुआ है ना, वहाँ पे कोई 60 फीट के करीब डेप्थ है, 60 के करीब वहाँ वल्स हैं। वहाँ जो बलून लगा कर आए हैं वो बलून बाहर नहीं आया। हमने दोबारा अब टीम भेजी है, हम नए बलून सेट कर रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी देर में कश्ती बाहर आती है। पहले जो हमारा पॉइंट था कि जहाँ हमारा ज़हन था कश्ती फंसी होगी, उससे कुछ 700 मीटर आगे जाके कश्ती आइडेंटिफाई हुई है, वहाँ पॉइंट पर कश्ती नहीं मिली। तो डेड बॉडीज़ हमारी रिकवर हो गई हैं, जो कुछ रह गई हैं अल्लाह करे को अल्लाह बेहतरी करे। अगर ऐसा कुछ हो तो वो विदिन 12 आवर्स हम इन तमाम चीज़ों। मुल्क भर की तरह गुज़श्ता रोज चूनिया बीबी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मुनासबत से तहसील इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से शुरू होकर AC ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और दीगर सरकारी मुलाजमीन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम के हकूक पर डाका डाला है। मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को खत्म करना बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। डेरा गाजी खान में जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जगह जगह सब सलारी परचम नजर आने लगे। बच्चों और बड़ों ने 14 अगस्त की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया। इसी बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन। अमीन, क्या सूरत हाल है 14 अगस्त के हवाले से? बाजारों में रश और खरीदारी की क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। सदर बाज़ार में यहाँ पर 14 अगस्त आते ही यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो स्टॉल लग चुके हैं। यहाँ पर शहरी बच्चे और बुज़ुर्ग ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में अपने घर को सजाने के लिए और बच्चों को 14 अगस्त के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के सूट लेने के लिए आए हुए हैं और अपने बच्चों को बेजस भी लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टॉलों पर यहाँ पर पाकिस्तान का तराना भी लगाया जा रहा है और यहाँ पर सदर बाज़ार में तराने की काफ़ी यहाँ पर गूंज है। मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे और ख़वातीन काफ़ी तादाद में यहाँ पर बेजस और सूट बच्चों के लिए ले रहे हैं। इनका ये कहना है 14 अगस्त के हमें बहुत काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है और हमारे पाकिस्तान जो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, हम पुरजोर जश्न भी मनाते हैं और मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने लिए भी यहाँ पर सूट खरीदते हैं। जी, दूसरी जानिब मियानी में पुलिस के बर वक्त और कामयाब कार्रवाई, लेडीज स्कूल टीचर को भत्ते की पर्ची देने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से। जी इकबाल, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना मियानी में, जहाँ पर जो है नवाई इलाका हजूरपुर में एक टीचर को भत्ता की पर्ची मौसूल हुई थी, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए SHO थाना मियानी राना आसम साहब ने मुलजिम को जदीद तरीका से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। इस केस के बारे में मजीद तफसील जानते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना मियानी, उनसे। जी
جی السلام علیکم. یہ ہمارے تھانہ میانی کے ایک نوائی گاؤں ہے قصبہ حضور پور. وہاں پہ ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں لیڈی, ادھر ہی گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول میں ملازمت کرتی ہیں. اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہمراہ ادھر حضور پور میں رہتی ہیں, اور ان کا ہسبینڈ نادرہ میں ملازم تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ بیوہ عورت ہے. اس کو نا ایک بھتے کی پرچی موصول ہوئی. اطلاع ملنے پر بر وقت کارروائی کی, ایف آئی آر کا اندراج کیا. موقع پہ پہنچ کے متاثرین سے ملاقات ہوئی اور ان کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی, اور یہ بات باور کروائی کہ ہم عوام کی جان مال عزت کے ذمہ دار ہیں, ان کی تحفظ کے ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں آنے دیں گے. ساتھ ہی افسران بالا کی طرف سے حکم موصول ہوا کہ جلد از جلد ان ملزمان کو گرفتار کریں, اور کسی قسم کا کوئی بھی جو وسائل ہیں ان میں کمی آئے, ہر قسم کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ان کو گرفتار کرنا ہے. اس حکم پر جناب ڈی ایس پی بیرا کی زیر نگرانی میں نے دن رات محنت کر کے اب اپنا جو بھی میرے پاس وسائل ہیں جن میں جدید ٹیکنالوجی ہوگی, ہیومن سورسز وغیرہ استعمال کرتے ہوئے ملزم کو میں نے گرفتار کر لیا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی کسی عناصر کو قطعاً اجازت نہیں دے گی کسی شریف شہریوں کو تنگ کرے یا ناجائز پریشان کریں. کوئی بھی کرمنل ہیں ہم انشاءاللہ ہم سب کو نکیل ڈالیں گے, سب کو اریسٹ کریں گے. انشاءاللہ ان کے ایسی دبنگ کاروائیاں جاری رہیں گی. جی جس طرح ایس ایچ او صاحب بتا رہے تھے کہ تھانہ میانی کے حدود میں کسی کو بھی کوئی جو ہے وہ جرائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی. جی خبر شامل کریں باڑوں سے, جہاں نہر پر 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. شگاف کے باعث سینکڑوں ایکڑ دھان کپاس کی فصلیں زیرآب آ گئی. اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف عمل ہے. علاقہ مکینوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ محکمہ آبپاشی کا عملہ اطلاع کے باوجود نہیں پہنچا. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث شگاف پر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. مکینوں کا کہنا تھا کہ سہڑوا کینال میں شگاف بل صفائی نہ ہونے کے باعث پڑا ہے. ہر سال بارشوں میں 70,000 سے زائد کی آبادی رکھنے والا شہر جھڈو کو ڈبونے کی وجہ بننے والی قرآن ندی کا آخر کار سندھ حکومت کو خیال آ ہی گیا. قرآن ندی کے پلوں کے ساتھ ساتھ بندوں اور پشتوں کو بھی مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا گیا. جی بالکل, اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جھڈو سے ہمارے نمائندے نثار رضا رائے سے. جی نثار, بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی ناظرین, میں اس میں موجود ہوں پران ندی پر. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں جو آپ کو ہیوی مشینری نظر آ رہی ہے, یہ پران ندی کی ان پشتوں کو مضبوط کر رہی ہے. یہ پشتیں جو تھیں یہ کمزور تھیں اور ان کی وجہ سے یہاں سے یہ ٹوٹتی تھیں, اور جھڈو شہر جو کہ 70,000 کی آبادی رکھنے والا شہر ہے, یہ مکمل کا مکمل زیر آب آ جاتا تھا. آخر کار 3 دفعہ جھڈو شہر ڈوبنے کے بعد سندھ حکومت ہوش میں آئی ہے اور ان پشتوں کا کام جاری کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے ان کا کیا کہنا ہے اور اس کام کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ وہ پران ڈورو ہے جس نے جھڈو شہر کو 2011, 2020 اور 2022 میں ڈبویا تھا. لیکن اس بار الحمدللہ سندھ حکومت کی نگرانی میں اور ان کی ہدایت پر اب الحمدللہ سندھ حکومت نے جو ہے پران کا کام شروع کر دیا ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی اس کا رستہ, کیونکہ جو اس کا پرانا رستہ تھا وہ تقریباً 320 سے 30 فٹ تھا, اور پھر بعد میں لوگوں نے انکروچمنٹ کر لی, قبضے کر لیے, جس کی وجہ سے یہاں سے پانی گزرتا نہیں تھا. ہمارا پورا شہر پچھلی بار ڈوبا تھا 60 سے 70,000 کی آبادی. اب الحمدللہ یہاں پہ اس کو چوڑا کرنے کا بھی کام اسٹارٹ ہو گیا ہے. پیچھے پل بھی بن چکے ہیں 3 سے 4, اور یہاں پر بند کو بھی مضبوط کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے. تو الحمدللہ, اور یہاں کے لوگوں کا میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ لوگوں نے یہاں پہ بہت جدوجہد کی ہے. جتنے بھی شہری تھے یہاں کے, انہوں نے اعلیٰ حکام کو خطوط کے ذریعے اور اپنی جو بھی اپروچ تھی ان کے ذریعے سارا پیغام پہنچایا, اور ساری ایڈمنسٹریشن نے اور جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں انہوں نے پورا تعاون کیا, اور الحمدللہ اس کام کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی بارشوں سے پہلے اس کام کو اختتام پذیر کر دیں گے. ہم سندھ حکومت کے بہت شکر گزار ہیں, اور اس میں میر طارق ٹالپور صاحب نے بہت تعاون کیا ہے, اور جس کی کوشش اور جدوجہد سے یہ پران ندی کا بند کا کام چل رہا ہے, اور ہم شکر گزار ہیں اس کے. جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی باتیں سنی, انہوں نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. کیمرہ مین ایم طلع کے ساتھ نثار رضا رائے. خبر شامل کریں میرپور خاص سے, جہاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم کشمیر استحصال کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے پریس کلب تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی. ریلی میں ضلع افسران, اساتذہ, طلباء و طالبات اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. ریلی کی مناسب سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے عبدالغفار لغاری.
मीरपुर खास में भी कश्मीरों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के ऑफिस से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक कश्मीरों के हक में नारे लगाकर एक रैली निकाली गई है, जिसमें मीरपुर खास के ऑफिसर और शागिर्द और मीरपुर खास के शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आज ही के दिन जो है इंडिया ने जो है ना वो कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म की थी और उसी सिलसिले में वो जुल्म ढा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो है मुतअद्दिद करारदाद हैं उसके ऊपर कश्मीर के 2 टेरिटरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था और उसका कंट्रोल इंडिया को दे दिया था। ये उनकी जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म करना उन पे बहुत बड़ा जुल्म था। उनकी अपनी एक हैसियत थी जिसमें इंडिया तो कोई भी बातें सुनी। इनका यही कहना था जो 2019 के अंदर कश्मीर से जो जुल्म और बर्बाद किया गया था उसके खिलाफ आज मीरपुर खास में जो सियाह दिन मनाया जा रहा है, उनका यही कहना था। मीरपुर खास के अंदर शहरों का यही कहना था जो कश्मीरों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है उसको फिलफौर बंद किया जाए और कश्मीरों से जो उनका हक है उनको दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज इजाफे ने डहरकी के शहरियों का जीना महाल कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राहिब सोमरो वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राहिब सोमरो, महंगाई के बायस शहरियों का क्या कहना है हुकूमत से? जी, इस वक्त महंगाई के हवाले से हम आज डहर की यूबीएल चौक पर मौजूद हैं। आइए कुछ यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे मजीद इस महंगाई के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत और पीडीएम हुकूमत आने के बाद इनके साथ क्या हालात हैं, आइए इनसे मजीद जानते हैं। हाँ भाईजान, महंगाई इतनी बढ़ गई है भाईजान, चीनी लेते आटा नहीं लेते, आटा लेते हैं चीनी नहीं ले सकते। भाई इतनी महंगाई हो गई, हम क्या करें, गरीब आदमी है, आटा भी नहीं पूरा होता भाईजान। इतनी महंगाई है, बस हाल बेहाल है। बहरहाल खंड वठूं था अटो नथा वठी सघूं, अटो वठूं था तो खंड नथा वठी सघूं, सब्जी जा पैसा भी न बचदा पे। एतरी महंगाई थी वई आहे, छा करे सघंदा आहियूं। बस मज़दूर तबको ॾाढो परेशान आहे, बस अल्लाह सां रहम कंदो। जी, आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि 600 से 700 रुपये दिहाड़ी है, आटा लेते हैं तो चीनी नहीं ले सकते, अगर चीनी लेते हैं तो दूध नहीं होता है, अगर जाएं तो जाएं कहाँ। इस हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि आम आदमी। हालिया मानसून बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कुछ अर्सा पहले तामीर होने वाला सिरीकोट से चुनतराई रोड टूट फूट का शिकार हो गया। जगह जगह खड्डे पड़ने के बाद गाड़ियों का गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से रोड टूट फूट का शिकार हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मुशवानी से। जी मुशवानी, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? या मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट चौंतराई रोड पे। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनाया गया था, क्योंकि इस रोड पे जगह जगह बजरी और क्रश डाला गया था। रोड नामुकम्मल है, मानसून बारिशों की वजह से ये रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है और बड़े बड़े खड्डे इस पे बन चुके हैं। ठेकेदार की नाअहली या महकमे की करप्शन की वजह से ये रोड ताहाल मुकम्मल ना हो सका और सिर्फ इस पे बजरी और क्रश डाला गया था, जो कि मानसून की बारिशों की वजह से वो भी पानी बहा के ले गया है। मेरे साथ यहाँ का शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इस रोड की वजह से इनको क्या मसाइल और क्या तकलीफ है। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी रोड की हालत खुद देख ली है। जगह भी बहुत बड़े खड्डे बने हुए हैं। हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मरीज़ को लेके जाना पड़ता है। वैसे भी गाड़ियाँ आती जाती है, लेकिन अभी रास्ता इस हाल में है कि गाड़ियाँ नहीं आ सकती, बहुत बड़े खड्डे बने हुए हैं। जी हाँ, आपने सुना कि इस रोड पे बहुत बड़े खड्डे बने हुए हैं। यहाँ पे मरीजों के लिए भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका आला काम से मुतालबा है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और ठेके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस, रेवेन्यू और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौका पर गुफरान अहमद ने कहा कि तरक्याती मंसूबों में फंड्स के ज़िया और ताखीर पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एमडी वासा ने तेल और बिजली खपत के हवाले से लाया अमल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। जबकि दूसरी जानिब एमडी वासा की काविशें रंग लाने लगी। वासा लाहौर की सालाना 10 मिलियन यूनिट्स की बचत करने लगा। एमडी वासा की जानिब से ट्यूबवेल्स के दौरानी और बिजली खपत के हवाले से मुतालिका शोबे से रिपोर्ट तलब की गई है। इजलास में टाउन की सतह पर रेवेन्यू
कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। वासा की एंड्रॉयड रिकवरी एप्लीकेशन की 10 दिन की रिपोर्ट एमडी वासा को पेश कर दी गई। बागों के शहर लाहौर से अपडेट करें। लाहौर में 485 बेड्स पर मुश्तमिल एशिया के सबसे बड़े मेयो अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। इनको सहूलियात देने के लिए निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की हिदायत पर CEO म्यूनिसिपल मेयो अस्पताल डॉक्टर हारून हामिद हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में मसरूफ अमल हैं। अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए क्या इंतजाम किए गए, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हाँ जी, इस वक्त हम एशिया के सबसे बड़े मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हैं और हम यहाँ जानते हैं कि जो आने वाले जो मरीज़ हैं उनको तिब्बी सहूलियात के बारे में और अद्वियात के बारे में कि यहाँ इमरजेंसी में अद्वियात मिल रही हैं। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब का और सेक्रेटरी हेल्थ का हुक्म है कि हमारे पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की कोई इल्लत नहीं है। इस बारे में हम जानते हैं कि मेयो अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे हैं इनको अद्वियात और तिब्बी सहूलियत मिल रही है। जी आइएगा। को तो थोड़ा सा ना इनका दिल घबरा रहा था तो इस वजह से इनके दवाई लेने आए हैं, हॉस्पिटल से मिले, यहाँ से लिए आई है। हाँ जी, हम तो मुतमिन हैं। मैं सर सुबह ना घर थोड़ा सा काम करने लगा था तो वो सीढ़ी नीचे से निकल के ना तो मैं गिर गया हूँ और मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, ये दाएं हाथ की। जी, इन्होंने सब अच्छा कारपेट किया हमारे साथ। ये मेडिसिन है, सुबह का जो भी है, ये सब कुछ ये हॉस्पिटल वाले हमें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बच्चा अभी 15 मिनट पहले हमारे पास आया है RTA की हिस्ट्री के साथ। 15 साल इसकी उम्र है, 2 बच्चे थे, रिक्शे में लगे हैं। तो अभी इनका इलाज हो गया है, मेडिसिन लग रही है इनको। अभी एक्सरेज और इन्वेस्टिगेशन इनकी होनी है, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। हमें कितलोर से आए हैं, मेरी अम्मी ने ठीक इसको लेकर आए हैं और हमें दवाई वगैरह मिल रही है। हमारा इलाज मेरी अम्मी का बहुत अच्छे से कर रहे हैं डॉक्टर। हमारे पास इमरजेंसी में जो भी आइटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं इमरजेंसी के हवाले से वो सारी मेयो हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास WMN है, CVP है और इसके अलावा बहुत सारे पेन किलर, सर्जिकल एंड मेडिसिन डिस्पोजेबल्स जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जी, जैसा कि मेयो अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर तिब्बी सहूलियात भी मैसर हैं, दवाइयाँ भी मैसर हैं और मरीज़ों के साथ डॉक्टर के रवैये के बारे में हमने मरीज़ों से जाना। सैयद आसिफ लियास, कैमरामैन। गुफ्तगू आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PHA और खिदमत फाउंडेशन मुश्तरका इश्तराक से मानसून मेगा शजरकारी तकरीब चौहट टाउन एक्सपो सेंटर मुनक्किद हुई। तकरीब का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल सफीउल्लाह गोंदर और खिदमत फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक मांगट और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम ने पौधा लगाकर किया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर PHA हसानुल हक, डायरेक्टर मार्केटिंग आमिर इब्राहिम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल्ला चीमा, मार्केटिंग ऑफिसर PHA मोहम्मद बिलाल ने शिरकत की। तकरीब में PHA के अफसरान समेत अल खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान, मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के सरबराहान और तलबा और तालिबात ने शिरकत की और पौधे भी लगाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।